قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم فلیٹیز ہوٹل میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. روڈوں پہ جتنے بھی گاڑی بائکس ایون کہ میرے خیال سے سب سے اچھی بات جو گاؤں میں ٹریکٹر چلتے ہیں ان کے بھی بڑے بڑے ٹائرز بنتے ہیں، تو میرے خیال سے کافی اچھی ورکنگ کی ہے، تو کافی اچھا رسپانس ہے. اور انشاءاللہ روڈوں پہ جتنے بھی گاڑی بائکس ایون کہ میرے خیال سے سب سے اچھی بات جو گاؤں میں ٹریکٹر چلتے ہیں ان کے بھی بڑے بڑے ٹائرز بنتے ہیں، تو میرے خیال سے کافی اچھی کوالٹی ہوگی. دیکھیں جرنی جب بھی آپ کوئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پازیٹیو چیزیں جتنی بھی ڈالتے ہیں اتنی اچھی ہوتی ہے، اور اس میں کافی دونوں پینڈت آئی اور میری طرف سے بالکل پوری کوشش ہوگی کہ اس کو اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کرایا جائے. اور جہاں تک رہی کرکٹ کی تو میں آپ نے کہا تھا نہیں بات ہوگی، لیکن انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے. میرے خیال سے یہ گراؤنڈ میں بات ہو تو ذرا تھا، یہاں پہ ذرا پینتھر ٹائر کی بات کرنے. سوری سوری یہ ہمارا کپتان ہے، پورے قوم کا کپتان ہے، پورے ملک کا کپتان ہے. جزاک اللہ. کپتان کیا امید رکھیں کہ بھارت میں ایک بڑا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اور پہلی مرتبہ زیادہ تر تمام کھلاڑی کھیلنے جا رہے ہیں، تو کتنا موٹیویٹ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ورلڈ کپ جیتتے ہیں، کیونکہ ایکسپیرینس کسی کھلاڑی کا بھارت میں کھیلنے کا زیادہ نہیں ہے. سر میں نے جیسا پہلے بھی بتایا، یہاں پہ میں اس چیز کا سوال کا آنسر نہیں دوں گا. اس کے لیے انشاءاللہ اسٹیڈیم میں ملیں گے سب کو میں سوال کا جواب دوں گا. جس کو جو چاہیے ہوگا میں ضرور اس کو پورا کروں گا. اس وقت جی کرکٹ کا جو صرف ہم جواب دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے پر امید ہیں، اور جو یہ کھلاڑی جائیں گے ماشاء اللہ سے ہمیشہ سے پورے ملک سے ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا بابر بھائی یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ برانڈ ہوتے ہیں وہ برانڈ ایمبیسڈر ہوتے ہیں، تو اکثر چیزیں جو ہے وہ کچھ استعمال کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے برانڈ ایمبیسڈر ہوتے ہیں. کیا آپ بھی اسی طرح کریں گے یا پھر آپ اس دفعہ جو ہے وہ ان کا ٹائم یوز کریں گے؟ کیا سر پہلے تو میں یوز نہیں کیا تھا، اب میں ضرور کروں گا، کیونکہ برانڈ ایمبیسڈر ہے تو میرا کام ہے کہ جو میں اگر اس چیز کو خود پبلشی یوز کروں گا تو اس کی زیادہ. سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں لاہور میں نون لیگ کے قائد کا استقبال. لندن میں رہنماؤں نے سر جوڑ لیے. پارٹی قائد نواز شریف سے مریم نواز اور شہباز شریف کی ملاقات. پارٹی ذرائع کے مطابق ملک میں موجود آئینی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف نے لاہور میں اہم ملاقاتوں بارے نواز شریف کو بریفنگ دی. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حالیہ بیانات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسی پر بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے. جی حسن، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے لندن میں رہنماؤں نے سر جوڑ لیے ہیں. پارٹی قائد نواز شریف سے مریم نواز اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں موجودہ آئینی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. لندن میں موجود مسلم لیگ نون کے عام ذرائع سے بات چیت کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے لاہور میں عام ملاقاتوں بارے نواز شریف کو بریفنگ دی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حالیہ بیانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے خصوصی مشاورت جاری ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا اعلان کیا گیا ہے. نواز شریف کے لاہور میں استقبال کی تیاریاں نون لیگ کے اس وقت اہم ایجنڈا ہے، اور تمام تر جو قانونی لیگل معاملات ہیں اس کے حوالے سے ایک میٹنگ ہو چکی ہے. صبح ناشتے کے موقع پر اب دوبارہ جو ہے وہ لندن کے وقت کے مطابق جو ہے تقریباً 2 بجے دوپہر دوبارہ ملاقات ہوگی. جی ٹھیک ہے حسن رضا، بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے.
शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 5 में जमा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा कार्रवाई पीर से शुरू होने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज साजिद ऐवान का तबादला हो चुका है। ड्यूटी जज नसीम विर्क के रुखसत होने के बाइस दोबारा कार्रवाई पीर से शुरू होने का इम्कान है। मजीद जानते हैं नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी, एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस पर जो है वो समाअत होने के लिए ये रेफरेंस जो है वो दोबारा एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज इस रेफरेंस पर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा कार्रवाई पीर से शुरू होने का इम्कान है। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली ऐवान का तबादला होने के बाद ड्यूटी जज नसीम अहमद विरक जो है वो सोमवार को इस रेफरेंस पर समाअत करेंगे। आज नसीम अहमद विरक के रुखसत पर होने के बायस इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जबकि ये जो रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया अनुमान। खबर ये है 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज़ जुम्मा को होगी। निगरान पंजाब हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर तफसीलात लेंगे हसन रजा से। जी हसन, बताइए। हसन रजा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो आपको आगाह कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को 29 सितंबर बरोज़ जुम्मा को होगी। निगरान पंजाब हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं, निगरान पंजाब हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज़ जुम्मा को होगी। निगरान पंजाब हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज़ जुमा को होगी। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी पर तफसीलात जानेंगे हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज़ जुम्मातुल मुबारक को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से महकमा सरसीना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को समरी भिजवाई गई थी, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुशावरत के बाद, जो कि इस टाइम चाइना में मौजूद हैं, वहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन अप्रूवल दी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो अगर देखा जाए तो लाहौर समेत जो जिस तरह सिविल सेक्रेटेरिएट और दीगर मुतलका महकमे हैं, वो जुम्मा, हफ्ता और इतवार उनको 3 छुट्टियाँ होंगी, क्योंकि हफ्ता और इतवार पहले ही सिविल सेक्रेटेरिएट 2 रोज़ बंद होता है। जो अगर जुम्मे की छुट्टी भी मिला ली जाए तो 29, 30 और यकम की छुट्टियां होंगी, और बरोज सोमवार जो यकम जो है 2 तारीख से जो है वो अपने सरकारी महकमों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के 20 मॉडल स्कूलों की सुनी गई। LWMC स्कूलों की सफाई के मामलात को खुद देखेगा। मॉडल स्कूलों में LWMC को कूड़ादान लगाएगा। LWMC का अमला बच्चों को सफाई बारे आगाही लेक्चर भी देगा। नाकिस इंतजामात पर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता रहे हैं लाहौर के 20 मॉडल स्कूलों की सुनी गई। LWMC स्कूलों की सफाई के मामलात को देखेगा। इसी पर मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि हर जिले में जो है 20 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। तो इस हवाले से लाहौर के 20 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, और इन स्कूलों में जो सफाई का जिम्मेदारी है वो अब LWMC को दे दी गई है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सरबराह परवेज अख्तर का कहना है कि LWMC इन स्कूलों में कूड़ेदान लगाएगा। LWMC का अमला बच्चों को सफाई बारे आगाही लेक्चर भी देगा। MWMC रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों में सफाई का जायजा लेगी, और इसके साथ साथ जो महकमा स्कूल एजुकेशन की टीमें हैं वो भी स्कूल का विजिट करेंगी और वहां पर सफाई की सूरत हाल का जायजा लेंगी। नाकिस इंतजामात पर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे कबल जो हाजिरी के लिए असातिज़ा को जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने का ऐलान किया गया था। ये भी कहा गया था कि अगर कोई टीचर और स्कूल नाकिस इंतजामात पर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया आतिफ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं।
चूँकि बहुत अच्छा और एक बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने, और मैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ अपनी पार्टी में, और उम्मीद करता हूँ कि जो जिस मिशन पे वो थी हम उनके साथ मिल के उस मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। और जिस तरह से मुनज़्ज़ा बीबी जैसी ख़वातीन जो हैं वो भी IPP की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ये बहुत खुशाइन बात है और बड़े हौसला अफ़ज़ा बात है कि एक उम्मीद नज़र आ रही है उनको कि जो उम्मीदें एक सब लगा के एक उस पार्टी में शामिल हुए थे पूरी नहीं हो सकें, और इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग मिल के इंशाअल्लाह ये सब चीज़ों को पूरा करेंगे, पाकिस्तान के लिए मेहनत करेंगे, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए मेहनत करेंगे, और कोशिश है हमारी कि जो मिशन पे निकले थे हम ओरिजिनली उस मिशन पे हम कामयाब हों। मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा मुनज़्ज़ा बीबी से अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि 2-3 हफ़्ते पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिसंगेज कर रही हूँ। बुलेटिन में आपको मौसम का हवाल बताएं तो आसमान पर बादलों के डेरे हैं। बादलों के साथ चलने वाली हवा के बाइस मौसम खुशगवार हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, तो आसमान पर बादलों के डेरे छा गए हैं। बादलों के साथ चलने वाली हवा के बाइस मौसम खुशगवार हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल, आगाह कीजिएगा मौसम का अहवाल। देखें, आज पंजाबी के महीने असूज, जिसे उर्फ़े आम में अस्सू भी कहा जाता है, उसकी 8 तारीख है, और जैसे ही इस महीने का दूसरा हफ्ता शुरू होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब सर्दी का पख लग गया। मतलब एक अमूमी ज़ुबान में जो बड़े बूढ़े हैं यही अल्फाज बोलते हैं कि अब गर्मी की शिद्दत में मुसलसल कमी आना शुरू हो जाएगी और खुनकी में इजाफा होता चला जाएगा। और इन दिनों भी लाहौर की यही सूरत हाल है जी कि दिन के औकात में थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होती, लेकिन रातें अब काफ़ी बेहतर होगी पहले की निस्बत। और इसके साथ साथ लाहौर में बारिशें बरसाने वाले एक नए निज़ाम ने भी प्रिवेल किया है। बड़े मुख्तर अरसे के लिए ये आया है जी। आज और कल का दिन लाहौर में क़याम करेगा, और आज अपने आने के बाद ये अपनी आमद का पता भी दे रहा है कि इस वक्त कहीं पर बूंदाबांदी और कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और कल शाम तक ये मौसम की सूरत हाल इसी तरह की रहेगी, और इसके नतीजे में टेम्परेचर मज़ीद नीचे आया है कि आज लाहौर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, और जो कम से कम दर्जा हरारत है वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मतलब पहले की निस्बत अब सूरत हाल गर्मी के हवाले से काफ़ी बेहतर है, और मौसम बहुत बेहतर, बहुत मोतदिल, और बूंदाबांदी के साथ अच्छी रफ्तार से हवा भी चल रही है, जिसके बायस हब्स की कैफियत आज बिल्कुल इस वक्त तो कम अज़ कम महसूस नहीं हो रही। और मुमकिन तौर पर अब हब्स की कैफियत कुछ ज़्यादा महसूस होगी भी नहीं कि अब मौसम की तब्दीली का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, और अब बेतदरीज समझ लीजिए कि सर्दी की आमद है। जी शुक्रिया सुहेल। आपको बताएं, अशूब चश्म वबा की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर दी। मुतासरा असातिज़ा और तलबा एक दूसरे के दरमियान फासला रखें, आंखों को गैर ज़रूरी तौर पर ना छुएं, हिदायत पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल हेड के खिलाफ कार्रवाई होगी। मजीद तफसीलात लेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में जो है अशूब चश्म के मरीज सामने आ रहे थे, और स्कूलों में भी तलबा और असातिज़ा जो है इस मर्ज से मुतासर हो रहे थे। और अब महकमा सेहत की एडवाइजरी के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने भी स्कूलों के सरबराहान को खुसूसी हिदायत और एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अशूब चश्म से मर्ज से बचने के लिए मुतासरा असातिज़ा और तलबा और बाकी तलबा से जो है फासला रखें, आंखों को गैर जरूरी ना मले और ना छुएं। मुतासरा असातिज़ा और तलबा अपनी अशिया दूसरों को ना दे और शेयर ना करें। इसके साथ साथ अपने हाथों को 2 से 3 घंटों बाद धोएं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई टीचर या स्टूडेंट इससे मुतासर है तो वो ऐनक का इस्तेमाल करे और टिश्यू से जो है आंखों को साफ भी करे। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो स्कूल सरबराह इन हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये तमाम एडवाइजरी जो है ठीक है, कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से आगाह करने के लिए।
डीसी लाहौर की यूसी 95 कच्ची आबादी आमद डेंगी मरीज की अयादत की। इलाके में डेंगी सर्वेलेंस की चेकिंग की। डीसी लाहौर ने मुतासरा घर और एतराफ में अपनी निगरानी में डेंगी स्प्रे करवाया। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने। जी तफसीलात बताइए। का मामला है डेंगी लार्वा की अफजाइश के मामले पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने आज दौरा किया है और रुख किया है यूनियन काउंसिल का और वहां पर इंडोर आउटडोर सर्विलेंस की है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 83 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 1330 जगह से लार्वा बरामद हुआ जहां पर सर्विलेंस करवा दी गई है और इस वाले से स्प्रे करवा दिया गया है। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मुतासरा घर का भी दौरा किया और वहाँ के अतराफ में भी अपनी निगरानी में डेंगी स्प्रे करवाया और उसकी उनके कंफर्म मरीज की इयादत भी की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। और इसके साथ साथ डीसी लाहौर ने डेंगी टीमों की हाजिरी को चेक किया, माइक्रो प्लान और टेली शीट्स का भी जायजा लिया। मुनासिब यूनिफॉर्म शनाख्ती कार्ड ना पहनने पर मुतलका DTHO को वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिया। इस हवाले से डीसी लाहौर का यह कहना है कि डेंगी मुहिम के मामले में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वजीर रेलवे शाहिद अशरफ तारड़ का रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। कराची पिपरी फ्रेट कॉरिडोर मंसूबे पर तबादला ख्याल। वजीर रेलवे को मालगाड़ियों से आमदन बढ़ाने का बिजनेस प्लान पेश किया गया। वजीर रेलवे ने गाड़ियों से माल उतारने के मकामात बढ़ाने के लिए रिपोर्ट मांग ली। रेलवे के तमाम हस्पताल मरहलावार पब्लिक के लिए खोलने का फैसला भी किया गया। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं फहद अमीन से। फहद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल निगरान वजीर रेलवे शाहिद अशरफ तारड़ ने आज जो है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर का दौरा किया। रेलवे हेडक्वार्टर में आला सतही जो है वो इजलास मुनक्कद किया गया। इस इजलास में रेलवे के तमाम जो है वो प्रिंसिपल अफसरान ने शिरकत की है। कराची पिपरी फ्रेट कॉरिडोर पर जो है वो मनसूबे पर जो है वो निगरान वजीर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मनसूबे के मुख्तलिफ ऑप्शन और तकनीकी पहलुओं पर भी जो है वो गौर किया गया है, जबकि इजलास में ये फैसला किया गया है कि अक्टूबर में बिडिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। 31 दिसंबर तक मुआहदे को हतमी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी। वजीर रेलवे को माल गाड़ियों से आमदन बढ़ाने का बिजनेस प्लान भी जो है वो पेश किया गया है। वजीर रेलवे ने गाड़ियों से माल उतारने के मुकामात बढ़ाने के लिए जो है वो रेलवे अफसरान से रिपोर्ट भी मांगी है। रेलवे के जेर इंतजाम अस्पतालों की खदमात आउटसोर्स करने पर भी जो है वो वजीर रेलवे को अपडेट की गई। रेलवे के तमाम अस्पताल जो है वो मरहलावार पब्लिक के लिए खोलने का फैसला जो है वो किया गया है। रेलवे स्टेशन की तज़ीन और रहाइश के लिए भी जो है वो वजीर रेलवे की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। जी शुक्रिया फहद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लिटरेसी डिपार्टमेंट का मिडिल टेक मंसूबा शुरू करने का फैसला। छठी से 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनर भी सिखाया जाएगा। टेफ्टा के ताउन से टेक्निकल एजुकेशन के लिए निसाब तैयार किया जाएगा। तो लिटरेसी डिपार्टमेंट का मिडिल टेक मंसूबा शुरू होने का फैसला किया गया। छठी से 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनर भी सिखाया जाएगा। टेफ्टा के ताउन से टेक्निकल एजुकेशन के लिए निसाब तैयार किया जाएगा। ये मंसूबा छठी से 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनर सिखाने का है। टेफ्टा के ताउन से टेक्निकल एजुकेशन के लिए निसाब तैयार किया जाएगा। ठोकर न्याज बेग से BRB तक कैनाल रोड को 3 लेन बनाने का मंसूबा ठप हो गया। गुज़िश्ता 5 बरसों से पंजाब में बरसरे इक़्तिदार 3 हुकूमतें मंसूबे के लिए इक़दामात ना कर सकीं। 2015 में शहबाज दौरे इक़्तिदार में शहर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए मंसूबा तैयार किया गया। 2018 में कैनाल रोड तोसीही मंसूबा हरबंसपुरा तक महदूद हो गया। कैनाल रोड तोसीही मंसूबे के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ज़ैनुल आबिदीन ने। ज़ैन, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। ये शहर लाहौर का एक और मेगा प्रोजेक्ट है जिसको ड्रॉप कर दिया गया है। ठोकर न्याज बेग से BRB कैनाल तक रोड को 3 लेन बनाने का मंसूबा बनाया गया था। शहबाज दौरे इक़्तिदार, बुज़दार दौरे इक़्तिदार, हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत और परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत में कैनाल रोड तुसी मंसूबा ज़ेरे गौर तो आया, मगर गुज़िश्ता 5 बरसों से पंजाब में बरसरे इक़्तिदार हुकूमतें कैनाल रोड तुसी मंसूबे के लिए इक़दामात ना कर सकीं। माजी में देखा गया है कि 2015 में शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब शहर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए मंसूबे तैयार किए। 27 किलोमीटर तवील कैनाल रोड पर चलने वाली ट्रैफिक को 3 लेन फराहम की जानी थी, जिसमें 1 लेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल जबकि 2 लेन गाड़ियों के लिए मुख्तस की जानी थी। 2018 में कैनाल रोड तुसी मंसूबा हरबंसपुरा तक महदूद कर दिया गया और
2019 سے 2023 تک کے مالی سال میں ہربنسپورہ سے BRB کینال تک سڑک کی توسیع کا پلان شامل تو کیا گیا مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جا سکا۔ LDA نے گزشتہ برس یہ ہربنسپورہ سے ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے۔ پاک ایران باہمی تجارت بڑھانے کا مشن، ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ ایران کے سفیر نے صدر چیمبر آف کامرس کاشف انور سے ملاقات کی۔ باہمی تجارتی، اقتصادی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عبد القادر سے۔ جی عبد القادر بتائیے۔ آج بالکل لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اسلامی جمہوریہ ایران کے پاکستان کے لیے سفیر جو ہیں ڈاکٹر رضا امیر مقدم نے آج دورہ کیا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کاشف انور سے ملاقات کی۔ دو طرفہ باہمی تجارتی، معاشی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمارے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کاشف انور موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک تو ایران جو ہے ہمارا برادر ملک ہے، دوسرا ہمارا ہمسایہ ہے، لیکن جو کچھ ایشوز جو بیچ میں ہیں کہ جو بارٹر ٹریڈ ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں کی چیمبرز کو اور وہاں کی بزنس کمیونٹی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا چیزیں ایکسپورٹ کرنی ہیں اور کیا امپورٹ کرنا ہے، اور ہم بارٹر ٹریڈ سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جو بہت ضروری بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بینکنگ چینلز کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک بینکنگ چینلز نہیں ہوں گے تب تک ہماری تجارت نہیں ہو سکے گی۔ تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے اور میری تمام چیمبر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے اپنے رول کو ادا کریں اور گورنمنٹ بارٹر ٹریڈ کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور بینکنگ چینلز کو کھولنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جی بالکل، آپ نے لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور کی گفتگو سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام چیمبرز کو جو ہے پاک ایران تجارت بڑھانے کے لیے اپنے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت جو ہے ایران اور پاکستان کے مابین بینکنگ چینل کے کھولنے کے لیے جو اپنے اقدامات کرے تاکہ دونوں ممالک جو ہے نہ صرف بارٹر ٹریڈ بلکہ باہمی تجارت کو بڑھانے کے لیے مزید جو ہے وہ اقدامات۔ جی شکریہ۔